everyone, welcome to the class of UGC NET Unit 8, that is from subject Commerce. Dear students, today this is going to be your last topic from Unit 8 and then we are going to shift to Unit 9. So Unit 8 तक हमारा इस सेशन के साथ साथ पूरा सिलेबस हो जाएगा from Unit 1 to Unit 8. I hope you are covering your each and every topic with me. If still you are getting any doubt, आप हमें मेल कर सकते हैं. ऑन द लास्ट आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी. यू कैन कॉन्टेक्ट अस. एंड आप अगर किसी स्टूडेंट्स को नोट्स की डिमांड है या उनको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए फॉर यूजीसी नेट, यू कैन गिव अस योर ऑर्डर थ्रू मेल और थ्रू फोन नंबर. So let's start today's session, dear students. It is about logistics management processes, right? So last topic of unit 8 जो हम cover कर रहे हैं, that was about logistics management. Logistics management से related हमने tools discuss कर लिए हैं, scope discuss कर लिया है, what its meaning is. So on the top you see the session, go and watch out what are the scope of logistics management. Now we will see कि logistic management के अंदर कौन कौन से process include किए जाते हैं. What are those basic processes that cover the whole logistics management? Without them it is incomplete. So let's start. The very first process we have is inventory management. Dear students, the first process is inventory management. देखिए logistics management कहाँ से start होती है? From getting raw material to the production house and then after making of that final goods, delivering that goods to the consumer. That is what in logistic management is made up of. Now the very first thing, जब आप raw material को production house तक पहुँचाते हो, इस चीज़ को ही बोला जाता है inventory management. Okay, so inventory is necessary for every company. How it is so necessary? Because it fulfills the demand levels. कितनी लोगों की डिमांड है भैया, हमें उतनी इन्वेंट्री चाहिए क्योंकि हमें उतना ही फाइनल गुड्स बनाना है. एंड कंपनी कैन आफ्टर दैट इजीली कंप्लीट दिस मैन्युफैक्चरिंग विदाउट ऑर्डरिंग आफ्टर अ वाइल. एक बार आपके पास प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाती है तो आपको बार बार ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कमी हो गई और सामान पहुंचाओ और सामान पहुंचाओ. यू शुड बी वेल अवेयर कि आपके पास कितनी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कीजिए. एक बार अगर आप ऐसा करेंगे तो कॉस्ट भी कम आएंगे बिकॉज ट्रैवलिंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस कम रहेंगे. बट अगर आप बार बार ऑर्डर करेंगे, वो बार बार सामान आएगा तो इससे कॉस्ट इंक्रीज होती है. दैट्स वाई लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट कवर्स इवैल्यूएटिंग द इन्वेंट्री लेवल. ये चीज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर ही कवर होती है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को इस पर्टिकुलर डिमांड ऑफ स्टॉक को कंप्लीट करने के लिए कितनी इन्वेंट्री चाहिए. ओके, सो इट डिसाइड्स द लोकेशन and transportation methods, and also order processing जो होता है is necessary for logistics process. Thus inventory management is essential, or you can say a major part of logistics. Right, moving to the second process, like after maintaining this inventory, next thing that a company should take care about under this logistic management is facility processes. फैसिलिटी प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है? फैसिलिटी मीन्स ease of doing the business, ease of doing production, ease of delivering the things. This is the facility. How much comfort you are giving to your employees. So the company must maintain a logistics facility. It should cover the hazards कि कल कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, अनवांटेड सिचुएशन हो जाती है, रिस्क आ जाता है, then company is ready to bear that. So facility process ensure the logistics जो है are correctly managed. Managers must adhere to the facility rules and provide a safe workplace. आपको एक working environment इतना safety के साथ देना है employees को, so that they work with dedication and confidence कि कल उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा. This is the second process, dear students. Moving to the third process, ये आपका UGC नेट में ये question आया है इससे related. So this is order, demand and fulfillment. ओके, आपने इन्वेंट्री तो पहुंचा दी प्रोडक्शन हाउस में. द थिंग इज नाउ, अब जो वो ऑर्डर है उसको आपको डिमांड भी तो पूरी करनी है. कितनी डिमांड चाहिए? देखिए फैक्ट्री को भी डिमांड हो सकती है रॉ मटेरियल की, वो भी ऑर्डर डिमांड के अंदर आता है. ऐसे कंज्यूमर्स को डिमांड है फाइनल गुड्स की, तो उनका भी ऑर्डर फुलफिल करना है. ये सब काम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर आता है. दे हैंडल दीज ऑर्डर्स. अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर. आप एक एज अ कस्टमर सोचिए, आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो थ्रू वेबसाइट, थ्रू फोन कॉल, वट एवर. एंड जब आपके पास वो ऑर्डर आता है, वो आपके ऑर्डर को लिखते हैं, योर ऑर्डर इज रिसीव्ड, देन इट इज शिप्ड एंड ट्रैक्ड.
आपके पास ट्रैक नंबर आ जाता है, ट्रैकिंग कीजिए आपका सामान कहाँ पहुंच गया है, ऐसा ही होता है. सो बल्क ऑर्डर्स रिक्वायर डिटेल्ड प्रोसेस, ये एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ काम किया जाता है. ऑर्डर फुलफिलमेंट इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस. जो मैनेजमेंट है दे शुड इम्प्लीमेंट सम मेजर्स टू इंश्योर फास्ट शिपमेंट. कस्टमर तक आपका सामान एक ईजी तरीके से फास्टली एंड सेफली पहुंचे. इससे क्या होगा, आपकी कंपनी की रेपो इंक्रीज होगी, गुडविल इंक्रीज होगी एंड कस्टमर विल ट्रस्ट यू मोर. नेक्स्ट प्रोसेस इज वेयर हाउस इंस्पेक्शन. लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर ही हमारा एक नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि अगर कोई फाइनल गुड डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा है लेकिन फाइनल गुड प्रोडक्शन हाउस से निकालना है, तो आप उसको कहाँ स्टोर करोगे, एक वेयर हाउस में स्टोर करोगे कि जब तक उस प्रोडक्ट की डिमांड आती है वी शुड स्टोर इट समवेयर सेफली. ऐसा ही होता है. सो देयर इज अ नीड, जहां आप उस सामान को स्टोर करोगे वेयर हाउसेज में, दैट वेयर हाउस, दैट प्लेस इज प्रॉपरली मेंटेन्ड. दे शुड हैव दैट कैपेसिटी टू होल्ड द गुड्स एंड वहाँ पर कोई भी रिस्क ना हो आपका सामान खराब होने का. तो वेयर हाउस की इंस्पेक्शन भी इसी के अंदर आती है एंड ये ड्यूटी किसकी है, मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो चेक वेदर जो उनका बिजनेस है दे फॉलो द रूल्स. इंस्पेक्शंस, इससे पूरा देखिए, इंस्पेक्शन आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो बिजनेस में काम है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन चल रहा है. तो इंस्पेक्शन वेयर हाउस सेफ्टी की भी की जानी चाहिए. वाई? बिकॉज देयर इज द लॉट ऑफ इन्वेंट्री और यू कैन से फाइनल गुड्स दैट इज स्टोर्ड देयर. और अगर आप वेयर हाउस का इंस्पेक्शन टाइमली करते रहेंगे तो इससे हजार्ड्स रिस्क कम होंगे. सॉरी. सो इट प्रोवाइड्स फॉर सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. एंड इससे अगर आप इसको बार बार चेक करेंगे, दीज चेक शुड बी फ्रीक्वेंट. वाई? बिकॉज इट विल मेंटेन अ कॉन्टिन्यूटी एंड इट विल मेंटेन अ सेफ्टी फॉर लॉन्ग पीरियड. So with this, dear students, we have discussed various processes of logistics management and I hope with this we covered this major syllabus. Till now we completed unit 8. यूनिट 8 तक हमारा सारा सिलेबस टॉपिक वाइज कवर हो चुका है डियर स्टूडेंट. एंड स्टिल अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है या आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो रह गया है तो आप मेरे पास सेशंस में जा सकते हैं. यू कैन गिव अस योर क्वेरीज. इफ यू नीड नोट्स यू कैन मेल अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन फ्रीली व्हाट्सएप अस. वी आर अवेलेबल देयर फॉर यू. फॉलो अस ऑन टेलीग्राम. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.